topic is simple harmonic motion, but this time we are using the example of simple pendulum. Let's proceed to our lesson, but first of all we have to recap our previous knowledge, that is recapitulation of our previous knowledge, पिछले इल्म का आधा. I am asking you a question. What is meant by resolution of a force? You have already studied it in your previous class. A force can be resolved into two or more components, but it is resolved into two components which are perpendicular to each other. Those components are called rectangular components. So resolution of force into two rectangular components is called resolution of a force. A force can be resolved into components, generally two perpendicular components along x-axis and y-axis. The component along x-axis is called fx and it is equal to f cos theta, and the component along y-axis is called y component and denoted by fy. Fy is equal to f sin theta. How can we prove any motion that it is simple harmonic or not? You already know that in our previous lesson you have seen that we have to prove that acceleration of any motion is to be proved equal to not equal to, but it is directly proportional to the displacement, and the acceleration is always directed towards the mean position, and we know that we denote it as a is directly proportional to minus x. यानी हम इसे a is directly proportional to minus x से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हम किसी मोशन के लिए ये साबित करते हैं कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो माइनस x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, then we can say that that motion is simple harmonic motion. Let's proceed to our lesson. What is meant by simple pendulum? A simple pendulum is a mass m attached or suspended from a light inextensible string fixed at its upper end from a forms a simple pendulum. It means a mass which is suspended by some support with the help of a string, with the help of a fine light inextensible string forms a simple pendulum. You can see a bob or a mass attached with some support from the upper end of the string, and it is swinging. In this animation you can see it. In equilibrium position, bob is at O. You can see position O, A and B in the next slide. O जो है वो दरमियान वाली पोजीशन है, उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन कहते हैं, और यहाँ पे उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट अपॉन नहीं कर रही होती, तो वहाँ पे वो बॉब जो होती है वो स्टिल होती है, साकिन होती है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता. जबकि एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी जो है वहाँ पे नेट फोर्स एक्ट कर रही होती है, वहाँ पे नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होती. We resolve the weight mg of the mass or bob into perpendicular components. One component is along the string and the other component is perpendicular to the string. Along the string is mg cos theta and perpendicular to the string is mg sin theta. जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रिंग के अलोंग कोई मोशन नहीं है, स्ट्रिंग के अलोंग कोई मोशन नहीं है, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर मोशन है. तो इसका मतलब स्ट्रिंग के अलोंग जो हमने कंपोनेंट रिजॉल्व किया था वो किसी और फोर्स को बैलेंस करता है. अगर कोई फोर्स स्ट्रिंग के अलोंग नेट फोर्स एक्ट अपॉन कर रही होती तो बॉडी को उस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेट करना चाहिए था. चूँकि उस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि ये जो कंपोनेंट है एम जी कॉस थीटा,
it balances the tension. अब mg sin theta जो है, it is the force which is responsible for the motion of this pendulum. यही वो नेट फोर्स है जो पेंडुलम को मूव करने पे मजबूर करती है. As we can see that mg sin theta is directed towards the mean position. तो इसका मतलब नेट फोर्स जो है वो मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है, मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है. और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है कि इसका एक्सेलरेशन भी सेंटर यानी मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगा. और यही कंपोनेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है किसका? एक्सेलरेशन का. इसे रिस्टोरिंग फोर्स भी कह देते हैं. अब आप एनिमेशन में देख सकते हैं एक पेंडुलम मूव कर रहा है और आप देख सकते हैं कि जो वेट है वो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व है, लेकिन एक कंपोनेंट ही शो किया गया है इस मोशन में और वो एफ या एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है. आप देखते हैं कि जैसे ही बॉडी एक्सट्रीम पोजीशंस की तरफ जा रहा है, बॉडी जब एक्सट्रीम पोजीशंस की तरफ जा रहा है तो उस वक्त क्या है, वो फोर्स या वो कंपोनेंट मैक्सिमम है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा है क्योंकि वेक्टर की लेंथ ज़्यादा है. जो ही वो मीन पोजीशन की तरफ आता है तो वेक्टर की लेंथ जो होती है वो शॉर्टन हो जाती है. इसका मतलब फोर्स कम होती है, फोर्स कम होती है तो एक्सेलरेशन भी कम होता है और मीन पोजीशन पे जाके वो फोर्स बिल्कुल वैनिश हो जाती है. मतलब मीन पोजीशन पे जाके एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है. हम फर्दर मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि ये एक्सेलरेशन जो है एक्चुअली जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है मैथमेटिकली. थोड़ा सा इसमें हटके है बुक से, कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी है, लेकिन जो ही आप मैथ्स जो है ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर्स का करेंगे तो आपको इसकी फुली समझ आ जाएगी. उससे पहले आपको इसे थोड़ा सा ऑन फेथ लेना पड़ेगा. इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आपको समझ आएगी तो फिर इसे लिखना बहुत आसान हो जाएगा. Due to mg sin theta, the component of weight of the bob starts moving towards O. If we left it at the extreme position A, then it will start moving towards O. At O, the bob gets the maximum velocity due to inertia. It does not stop at O. इनर्शिया की वजह से ओ पे स्टॉप नहीं करेगी, आगे निकल जाएगी. आगे निकल के दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ जाएगी, यानी अपनी मोशन को ये जारी रखेगी. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है कि F इज इक्वल टू एम ए है. तो हम लिखेंगे एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्प्रिंग वाली पिछले एग्जाम्पल में हमने किया था. वो आप पिछले प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं. उसे बल्कि आप देखेंगे तो इसकी ज़्यादा समझ आएगी. इसका डिस्क्रिप्शन मैं कमेंट में भी सेंड कर देता हूँ और कार्ड की शक्ल में, आई की शक्ल में भी ऊपर आपको नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह. तो हम लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा बिकॉज द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. इस वजह से साथ माइनस का साइन आ गया है. फिर क्या हुआ है कि इस m से ये वाला m कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया a इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा. a इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा. अब देखें कि नेक्स्ट फॉर वेरी वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा. अगर थीटा की वैल्यू बहुत थोड़ी हो, थीटा भी रेडियंस में है. रेडियन एक और मेजरमेंट है एंगल की, एंगल को मेजर करने का एक और स्केल है. एक डिग्री है, एक रेडियन है. तो फॉर वेरी वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी अप्रॉक्सीमेटली साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाते हैं. जो साइन है ना, इक्वल का नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का साइन है. तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाता है फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा. ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे कि L इज इक्वल टू आर थीटा. L इज इक्वल टू आर थीटा. मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ. अगर हमारे पास ये कोई सर्कल है, सॉरी,
ये कोई सर्कल है और ये सपोज कर लें रेडियस है, ये रेडियस है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, और ये जो आर्क है इसकी लेंथ एल है और ये रेडियस आर है। तो इस सूरत में एल बराबर होता है आर थीटा के, एल बराबर होता है आर थीटा के। ये भी आप 10th में ही इंशाल्लाह पढ़ लेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में। बहरहाल इसे अब याद रखना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि एल इज इक्वल टू आर थीटा के होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ पे ये एल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है, वैसे तो बुक में इसे एस से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन इसे हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे। तो हम लिख सकते हैं एल की बजाय क्या आ गया एक्स, और यहाँ पे था ये आर और यहाँ पे है लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल, तो इस वजह से आर की बजाय क्या आ गया एल आ गया, और ये साथ थीटा आ गया, x इज इक्वल टू एल थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल। एल देखें तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, लिहाजा थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल हो गया, थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल हो गया। अब हम थीटा की ये वैल्यू साइन थीटा की बजाय थीटा और थीटा की ये वैल्यू एक्स अपॉन एल इस वाले रिलेशन में पुट करते हैं, तो ए हमारे पास हो जाएगा माइनस जी इंटू एक्स अपॉन एल या माइनस एक्स अपॉन एल इंटू जी। अब ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक्स और जी दोनों आपस में क्या है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन जो होती है कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, तो इन दोनों की जगह हम आपस में चेंज कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल इंटू एक्स, माइनस जी अपॉन एल इंटू एक्स। तो अब हम देख सकते हैं कि एक ख़ास हाइट पे जी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, अगर हाइट चेंज ना हो तो जी कांस्टेंट होता है। एल जो है लेंथ ऑफ द पेंडुलम वो भी ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब जी भी कांस्टेंट है और एल भी कांस्टेंट है, और एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से डिवाइड करें तो आंसर एक और कांस्टेंट आता है। जैसे 10 को 5 से डिवाइड कर दे तो आंसर 2 आता है, या 2 से डिवाइड कर दे तो आंसर 5 है, 5 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि g अपॉन l इज एन अदर कांस्टेंट, सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू माइनस a कांस्टेंट इनटू x, माइनस अ कांस्टेंट इनटू x। एंड यू know from your previous knowledge that whenever we remove a constant from an equality, the sign of equality changes into sign of proportionality. Sign of equality changes into sign of proportionality. So a will be directly proportional to minus x. A will be directly proportional to minus x. अब वो लोग जिन्होंने पिछला लेसन सुना हुआ है उनके लिए तो ये बहुत आसान बात है कि ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम द मीन पोजीशन, एंड वी नो दैट दिस नेगेटिव साइन शोज दैट दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, and these are the characteristics of simple harmonic motion. We know that these are the characteristics of simple harmonic motion, hence the motion of simple pendulum is simple harmonic motion. Hence we can say that motion of simple pendulum is simple harmonic motion, or we can say that example of the motion of simple pendulum is the example of simple harmonic motion. Furthermore, time period of a simple pendulum. Time period, what is meant by time period? Time period is the time taken by a vibrating or oscillating body to complete one complete round trip or one vibration. Time period is the time taken by vibrating body to complete one complete round trip or one complete vibration. One complete round trip or
वन कंप्लीट वाइब्रेशन। तो ये टाइम पीरियड होता है। ये टाइम पीरियड हम साबित करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि बिल्कुल यही सारा कुछ प्रूव करने के बाद बड़ी आसानी से प्रूव कर लेंगे कि टाइम पीरियड टी बराबर होता है 2πL/g। टाइम पीरियड of the simple pendulum t is equal to 2πL/g. T is equal to 2πL/g. You can see that here is L. टाइम पीरियड जो है वो लेंथ पे तो डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। ये आपको पता है कि पाई भी एक कांस्टेंट नंबर है और g भी खास हाइट के लिए कांस्टेंट होता है and 2 is already a constant. So time period only depends upon the length of the time period. So length of the pendulum, sorry, time period depends upon the length of the pendulum only. It doesn't depend upon mass, क्योंकि इस रिलेशन में आप देख सकते हैं कि कहीं भी mass का जिक्र नहीं है, कहीं भी m नहीं है। mass पे डिपेंड नहीं करता, फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। सो t is equal to 2πL/g. These two formulae will be used in solving your numericals. First formula was t is equal to 2πm/k, where m was the mass of the body attached to the spring, k was the constant of the spring, t is equal to 2πm/k square root। तो यहाँ पे t is equal to 2πL/g। वहाँ पे टाइम पीरियड डिपेंड करता था मैस पे, यहाँ पे टाइम पीरियड मैस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द पेंडुलम। एक और बात बड़े मजे की, अगर आप दो पेंडुलम सेम रखें, उनकी लेंथ सेम रखें, मैसेज चाहे एक लाइटर हो एक हैवियर हो, एक के साथ आप मतलब 100 ग्राम्स जो है उसकी मैस लगा दें, दूसरे के साथ अटैच कर दें 200 ग्राम्स की, लेकिन उनकी लेंथ सेम हो पेंडुलम्स की, तो दोनों का टाइम पीरियड सेम हो, फिर सेम। और अगर लेंथ डिफरेंट है, मैसेज चाहे सेम है, तो उनका टाइम पीरियड सेम नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्दी हाजिर होंगे। लेकिन जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और इस पर कमेंट्स भी दें कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक का कमेंट दें, और अगर अच्छा नहीं लगा तो बताएं कि कहाँ पे आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफिज़।